So let's start. Now coming to the sources part of the history. Sources of ancient history, you can see there are three sources. First is literary sources, second part is archaeological, and that the foreign travelers which they had traveled to India and write about that Indian history. So coming to these three segments, we can come one by one. That first is literary sources. Literary sources, we have a religious sources, secular literature, religious literature, and Sangam literature. That religious literature, you can see you have a Brahman and Vedic. Then second, if you go for that Buddhist literature, and third is means like these are the three parts of that religious literature. Religious literature comes Brahman and Vedic, Buddhist and Jain. Again, Brahman, Buddhist and Jain are coming under one by one. Brahman and Vedic where Vedas, Brahmanas, Aranakya, Upanishad, Shutra, Smriti, Puran, Mahakavya. These are comes under Brahman and Vedic literature as a religious literature. If you categorize the Buddhist, then coming to the Tripitak, then Jatak, then Pali, Sanskrit literature and others in Buddhist. And coming to the Jain literature, that is Angas, Upangas, Parikrna and Chhed Sutra. So these are the Jain literatures. Coming to that secular literature, one is historical and second is non-historical. Non-historical where Arth Shastra, Ashtadhyayi, Mahabhashya and other. And the second one, historical, where you have a Raj Tarangini and Ramcharitmanas. Coming to that, these are the sources which you mentioned about, that the literary sources. Coming next to that, this one, archaeological sources. What do you need? That evidences coming from the excavation, जो आप खुदाई करते हैं वहां से मिलता है. That inscriptions, monuments, coins, paintings, this comes under the archaeological sources. And foreign travelers like Greek authors, Chinese travelers like Paiyan, Huensang, ये सब जितने आए थे. And Muslim writers, once you were writing your medieval history, तब के बाद इनके ऊपर पूरे इतिहास को लिखा गया, इनको यूज करके as an evidence. तो ये पूरा का पूरा कैटेगरी इसके अनुसार है. Coming to that, archaeological sources. What does mean that archaeology means? That is archaeos plus logia. That is a Latin means like the story of the study of the past based on the object or the parts which buildings are found in the ground. Ground के नीचे जो भी आपके एविडेंस है, जो भी पहले के सिविलाइजेशन है, दैट हैज बीन प्रेजेंट एट दैट टाइम, उनका हम यहाँ पे इसके अंदर स्टडी करते हैं. ये स्टडी करने का एक रीजन है, व्हाट इज दैट मीन, लाइक इफ यू गो टू एक्सकावेट तो एक आपको टीला मिलता है, दैट इज कॉल्ड टू बी माउंट्स. और वो माउंट्स जो ऐसा होता है कि माउंट्स के अंदर इफ यू गो एंड पेनिट्रेट डायरेक्टली वर्टिकली, then you have to be think of it, you have a layer of layers which denominates culture after culture. But if you spread the things like that horizontal, you cover the area, but it doesn't mean that you have a different type of multi-layer culture आपको मिलेगा. क्योंकि जैसे आप इसको फैलाएंगे, एक पहला चीज उसमें आपके जो मैन पावर है और जो आपके रिसोर्सेज है, दैट वुड बी मोर, यू हैव टू गिव दैट वन. तो यहाँ पे क्या है कि माउंट्स इज एन एलिवेटेड पोर्शन, लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ द ओल्ड हैबिटेशन. मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन लाइक बरीड अंडर द माउंट स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. इट मे बी डिफरेंट टाइप्स मीन्स अ सिंगल कल्चर, सेकेंड वन इज अ मेजर कल्चर एंड थर्ड इज दैट मल्टी कल्चर. तो इनका एग्जाम्पल अगर देखते हैं, अगर वन कल्चर माउंट मीन्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर थ्रू आउट सम माउंट, ये माउंट्स है, डी होगा यहाँ पे, जस्ट चेक इट. मेजर कल्चर मेथड्स इन मेजर कल्चर माउंट्स, वन कल्चर इज डोमिनेंट एंड अदर आर नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अगर आप एक जगह खुदाई करते हैं, अगर आप पहले लेयर पे पहुंचते हैं और आपको वहां से कोई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं या कोई भी ऐसा आपको पॉटरी मिलता है और वहां के बाद आप उसके नीचे का बंद कर देते हैं, पहले तो ये डिसाइड होना है कि दैट प्लेस इज रियली हैविंग दैट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मे बी वो हम आजकल उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले एविडेंसेस के ऊपर जाना पड़ता है कि वो रियल में है. जैसे राखीगढ़ी, अगर आप इन सब साइट्स को देखेंगे, लोथल मध्य प्रदेश में भी बहुत सारा, भीमबेटका आप जानते हैं, भीमबेटका के बारे में जानते हैं, तो भीमबेटका तो एक्सटर्नली आपको केव के अंदर पेंटिंग दिख रहा है, बट इनसाइड द माउंट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे जियोलॉजी कहता क्या है कि मेटल आपके इस अर्थ के नीचे कहां पे है, उसको पता करना पड़ता है पहले, देन उसके बाद खुदाई शुरू होती है. तो यहाँ पे भी द सेम कंसेप्ट इज, माउंट के अंदर जब जाएंगे तो इनिशियली द फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, जहां जितना आप जाते हैं, अगर आपके पास ये है कि दैट you can understand that evidences of that things can be found from that particular area, then you can go and deep inside you can just try to excavate. तो आप उसमें जाते हैं. यहाँ पे क्या है कि उसके आधार पे मेजर कल्चर में क्या होता है कि मे बी विद इन 1 मीटर 2 मीटर और 250 फीट इनसाइड दैट माउंट, वो एक का क्या होगा कि एक कल्चर खत्म होगा और दूसरा शुरू हो जाएगा आपका. तो वो जो सिंथेसिस है जो कल्चर का, उसमें क्या होगा
कि जैसे जाएंगे तो शायद पहला वाला डोमिनेशन उनका खत्म हो, मेजर आपका नीचे से शुरू हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड टू ए मेजर culture part, and multiculture represents several important culture in succession which occasionally overlap with that another like Ramayana and Mahabharata. ये सब भी आपके उसके पार्ट में मिलेंगे. Coming to that, how mound can be excavated. A mound can be excavated vertically or horizontally. Vertically excavation means lengthwise digging, means deep inside, and uncover the period wise sequence of that culture. To obtain the complete idea of the site culture in a particular period, since most of sites have been dug vertically, they provided a good chronological sequence of the material culture. तो एक के बाद अगर एक जाएंगे तो वो आपको layer by layer वो आपके chronology भी बताता चलेगा आपको. Now coming to the horizontal excavation, digging the mounds as whole enable the excavator to obtain a complete idea of the site culture in a particular period. Horizontal digging is very expensive. There are very few in numbers. With that result of the excavation do not gives us a full even adequate picture of the material life in many phases of the ancient Indian history. जब आप horizontal करते हैं तो आप उसके विस्तार को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप vertical करते हैं तो आप जैसे कुएं में अगर आप डालोगे तो कुआं के अंदर जितनी चीजें मिलेंगी वो लेयर बाय लेयर मिलेगा, बट horizontal में spread over the time. Now coming to the second part is the numismatic. Numismatic is the study of coin. The epigraphy, study of inscription, and paleography is the study of the old writing used in inscription and other old records is called paleography. Now coming to the inscription. Inscription कहाँ किस चीज से बना होता था? That is from the stone pillars, rocks, copper plates, temple walls and bricks or images. And earliest inscription was recorded on stone. The largest number of inscription may be found in the office of the chief epigraphics at Mysore. ये जो रखा गया है ये मैसूर में रखा गया है. That earliest जो रखा हुआ है ये मैसूर में है. The earliest inscription were written in Prakrit language in 3rd century. Sanskrit was adopted, but epigraphy medium is the 2nd century AD. तो आपका जो पहला जो मिलता है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलता है. Then coming to that Ashokan inscription, जहां से evidences शुरू होता है, engraved on a Brahmi script which is written from left to right. यह ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं. Coming to that, some of the incised Kharoshti lipi which is written from right to left. The Brahmi script prevailed in the whole country except northwestern part. Greek and Aramaic script were employed in writing Ashokan inscription in Pakistan and Afghanistan. The earliest inscription were found on the seal of Harappa belonging to about 2500 BC. The oldest inscription issued by Ashoka in 3rd century BC. In that 14th century, what happened? The Ashokan pillar inscription were found by Firoz Shah Tughlaq, which brought to Delhi, and that is from Meerut, and another place is called Topra in Haryana. ये जो दो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, फिरोज शाह के समय में वहां से लेकर लाए गए थे और दिल्ली में रखे गए थे. He brought them Delhi and Pandits of that empire. Sorry, this is E. You can just write down E. To decipher that inscription, but they failed to do so. उन्होंने पंडितों को बोला भैया इसको पहचानो, इसके लिपि को समझो, ये क्या लिखा हुआ है. The same difficulty was faced by the Britishers उनके अंदर on the last quarter of 18th century to discover the Ashokan inscription. These epigraphs were first, the important one is deciphered by 1837 by James Preset, a civil servant in the employ that East India Company in Bengal. ये प्रश्न आपके पूछे हुए हैं पहले भी, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस के अंदर भी, कि किसने डिसाइफर किया था. Various types of inscription like royal orders, decision regarding social, religious and administrative matters to officials and people in general. मतलब ये क्या था इंस्क्रिप्शन का यूज करने का तरीका. तो ये हम करते थे, जो रॉयल ऑर्डर्स था उनको हम उस पर इंस्क्राइब कर देते थे. और कहाँ रखते थे? वैसे जगह पे जो कॉमन प्लेसेस है, लाइक पब्लिक प्लेसेस है, उनको लगा देते, लोग आके उसको पढ़े. बाद में मौर्यन के समय में आप देखेंगे एक ऑफिशियल होते थे धर्म महामात्राज, उनको रिक्रूट किया गया था. यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एंड सी दैट एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन दैट राइट प्लेस. तो ये आगे अभी हम देखेंगे. द अदर वोटिव रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म who put the pillar tablet, temples or images as a mark of devotion. Old inscription Emperor Ashoka, majority in Brahmi script. तो ये चीजें अशोका के द्वारा था. Coming next, that the evidences, हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिला है? That is by a king Kharvel at Udaygiri in Odisha. The second one, Nagnika inscription
about the work of Satvahan and King Satkarni first found at that Nana Ghat Abhilekh, that inscription in Maharashtra. The third one, the Nasik inscription about Gautami Putra Satkarni found at Nasik cave at Maharashtra, जहां पे अजंता एलोरा भी आप देखते होंगे. Coming to that Aihole inscription written by Ravi Kirti about Pulkeshin II, the Chalukya king of Badami in Karnataka. Next, these are the inscription evidences. Coming to the coins, coins के अंदर the study of coins is called to be a numismatic. Ancient currency was not issued in the form of paper, but as a made of metal, copper, silver, gold, lead mound made by this one. There was nothing like that modern banking system in the ancient time. But what happened that earthenware, also brass vessels, maintained them as a precious foods which they could fall back in the time of need. मतलब वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ आपको मिलेगा. तो ये सब सारी चीजें जो था उस तरह का कि आज के समय में वो कॉइन्स का वो बैंकिंग सिस्टम नहीं था. बट आगे अगर देखोगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमी का जो एक्टिविटी होता था उसके बारे में यू कैन जस्ट ट्राई टू मेंशन. वो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस किंग का मिलता था कि किसने किस किंग ने क्या इशू किया. एंड देन कमिंग टू द कॉइन्स कंटेंट अ फ्यू सिंबल्स, किस रूलर का कौन सा कॉइन किसने इशू किया था और किस टाइम में किया था. तो जो रूलर के सिंबल्स उस पे आते थे, लेटर ऑन उसमें गॉड गॉडेसेस के भी आपके इंस्क्रिप्शन उस पे इंस्क्राइब किए हुए मिलेंगे आपको. द एरिया वेयर दे फाउंड इंडिकेट द रीजन of their circulation. Since the coins were used for various purposes such as donation, made of payment, medium of exchange, they throw the considerable light on the economic history. The first coin of India, ये major question है, पूछा गया, that is a Panchmark coin, and ये जो question था ये pre-Mauryan period का है. That method punching possibly introduced by the trading guilds, not by the any ruler. Ratio for purity of the coins interpret about the economic condition of that ruler. The first gold coin used by Indo-Greeks, ये भी आप नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है. Purest gold coin issued by the Kushana, and maximum number but not in pure issued by the Gupta. तो धीरे धीरे कॉइन के अंदर भी उसकी क्वालिटी में भी आप देखेंगे डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है, उसमें क्वालिटी भी वो सफर करते. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स. So monuments, what happened, study helps to interpret the technical skill, living standard, economic condition and architectural style of the time. ये कैसे होता है? अगर आप medieval history में जाते हैं तो जब आप medieval history में देखेंगे that the ruler which have ruled to in the different parts of India was their monument, and they have invested so much money to become that any fort, fortresses and anything. It means that that entire kingdom was flourished. उनके पास पैसे थे तो वो उनकी एक्टिविटी का भी सेंटर हो सकता है. तो वो कहीं ना कहीं उसके इकोनॉमिक के कंडीशन को भी दिखाता है एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी दिखाता है. डिपिक्ट ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ अ रूलर ऑफ द डायनेस्टी. 3 मेजर स्टाइल अगर आर्किटेक्ट के अंदर जाते हैं वो हम अभी कल्चर में देखेंगे. द फर्स्ट इज नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ, द्रविड़ स्टाइल ऑफ साउथ एंड वेसर स्टाइल ऑफ डेक्कन. ये 3 स्टाइल है जो कि आपके कल्चर में हम आगे पढ़ेंगे. कमिंग टू द स्कल्पचर पार्ट, दैट हड़प्पन स्कल्पचर जो भी हड़प्पा भी शुरू करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर दैट बीन मेड बाय स्टेलाइट, क्ले, टेराकोटा, लाइम, ब्रॉन्ज, आइवरी एंड वुड इटिस. इनके द्वारा इनका यूज क्या था? आइडल्स के लिए, आइकॉन्स के लिए, खिलौनों के लिए, टॉयज एंड एंटरटेनमेंट के लिए. उस समय अगर आप देखेंगे तो आगे चल के आपको देखोगे शतरंज का भी, चेस का भी उसमें एग्जाम्पल्स मिलता है. एंड चेस के अंदर जो हम यूज करते थे डायस, वो क्या किस चीज का होता था उसकी भी अगर हम जिक्र करेंगे. देन कम टू द मौर्यन स्कल्पचर वेयर यू हैव फाउंड एविडेंस ऑफ यक्षी ऑफ दीदारगंज. व्हेन यू गो टू दैट सी दैट द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, एंड दैट हैज बीन फाउंड इन दैट कुमरार इन बिहार नियर पाटलिपुत्रा. एट द टाइम दैट नेम वाज पाटलिपुत्रा. So Yakshi of Dijarganj, contemporary appears to aesthetic sense of the people. Statue of Kanishka, foreign origin of the king and costume of foreign style like high suit, overcoat and etc. ये स्कल्पचर में ये सारी चीजें थे. जो स्टैचू ऑफ कनिष्का है उनको भी देखेंगे तो उनका जो स्कल्पचर मिलता है उसके ऊपर में उनके ये जो स्टाइल थे, उनके कोट पहनने का तरीका है उसका. Then coming to that painting, already you have mentioned that earlier instances of painting
which is Bhimbetka, Madhya Pradesh, drawn by Mesolithic cave dwellers by using colors and tools from surrounding natures. How many of you have visited to this Bhimbetka? 2, 3, 4. All of you. Okay. Good. Gupta painting information about the religious ideology, commercial, spiritual, serenity, ornaments, costume, and foreign visitors. Chola painting display the concept of the divine kinship of Chola polity. Then coming to the literary sources. Literary sources, which we have already mentioned about the categorization. Coming to the next about the Vedic text, that Rig Veda, oldest give us an idea of Rig Vedic society. अभी दूसरा चैप्टर जब शुरू होगा तब ऋग्वेद में हम इसकी चर्चा करेंगे. देन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी ऑफ द लेटर वैदिक. क्योंकि ऋग्वेद के अंदर में एक ही पार्ट इसका ऋग्वेद लिखा गया था, बाकी 3 जो है वो लेटर वैदिक पर. हिस्ट्री ऑफ 900 ईयर्स, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्यन, कहाँ से आए थे, एंड देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, एंड देयर रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे करते थे. कमिंग टू द सूत्राज, World or Heinz placed beautifully like pearls in the thread which gives information about the Veda. तो ये सूत्र लिखा गया था वेद के ऊपर में 6 पार्ट्स, जो 6 पार्ट थे. पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण विच इज अ ग्रामर, थर्ड छंद, फोर्थ कल्प, फिफ्थ निरुक्त एंड फिफ्थ इज ज्योतिष. ये 6 पार्ट है विच इज द पार्ट ऑफ सूत्रस. ठीक है. एंड देन कमिंग टू उपवेद, वेद के ऊपर उपवेद लिखा गया. आयुर्वेद रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस. यहाँ पे देखो, इसको याद करने का भी एक हमेशा ध्यान रखना. नॉट ओनली, समटाइम्स यू नीड टू दैट एंशियंट पार्ट, और प्रोबेबली यू कैन सी इन दैट एंशियंट एंड मेडिवल वर्ड इज यूज रिलेटेड क्लोज टू द संस्कृत वन. मे बी आयुर्वेद, you know that from the medical side, they're related to medical science only. So you just think of it in that way. Gandharv Ved, Gandharv is a नृत्य, ठीक है, related to music and उपवेद of सामवेद. तो कभी क्वेश्चन ऐसा आए, याद नहीं रहे, तो आप उसको सोचिए कि वो क्या टर्म का मतलब है. थर्ड धनुर्वेद, धन, war skills, arms, ammunition of उपवेद of यजुर्वेद. शिल्प, शिल्प कला को जानते हो, रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, तो उसके नाम पे ही दिया हुआ है. तो ऐसा गलती कभी करके नहीं आएंगे आप. तो अगर कभी स्मार्ट गेस करना भी हो तो यू कैन थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. कमिंग टू द स्मृति टेक्स्ट, मनु स्मृति, ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट. याज्ञवल्क्य स्मृति कंपाइल्ड बिटवीन 100 to 300 AD. नारद स्मृति 300 AD to 400 AD एंड पराशर स्मृति सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द गुप्ताज. ये एविडेंसेज जो है, ये सोर्सेज के अंदर क्या किसके बारे में मेंशन है वो आपको हम इसमें. नाउ कमिंग टू द पुराणास. पुराणास का जो पुराण है वो 18 संख्या में, टोटल नंबर ऑफ 18. मार्कंडे पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण एंड एंशियंट, जो भी ये सारे एंशियंट पुराण है. कमिंग नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट डायनेस्टी इन मत्स्य, वायु एंड विष्णु पुराण. Only available source of the dynasties that ruled after the battle of Mahabharat, and it's provided chronology of the different dynasties in their hierarchy. ये चीजें आपको वहां पे पुराणास में मिलता है. पिक क्या है, अ पार्ट ऑफ ब्राह्मिक टेक्स्ट जो लिखा जाता है उसके बारे में. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज महाभारत एंड रामायण. रामायण बाय वाल्मीकि, द पोस्ट मौर्यन जो पीरियड में लिखा गया था, एंड महाभारत बाय वेद व्यास, कंपाइल्ड गुप्ता, मतलब गुप्ता के काम में इनिशियली शुरू किया गया था, किया गया था, completed in the Gupta time and initially named as a Jai Samhita. And coming to the Buddhist literature, Buddhist literature के अंदर to have a Pitak, Pitak means old text and compiled after the nirvana of Buddhism. बुद्धिस्ट के निर्वाण की प्राप्ति के बाद ये लिखा गया था, जब निर्वाणा अटेंड कर लिया था इन्होंने. 3 type of Pitak, that is Sut Pitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. So Sut Pitak consists of religious ideology and what Buddha has saying. Second one is Vinay Pitak, that is consist of law of Buddhist संघ का. संघ के अंदर जब प्रवेश करते थे समय भिक्षु और भिक्षुनी, two ones, once you are enter then there have a protocol, they have a rules उनके थे. तो rules क्या थे वो inscribe किए हुए यहाँ पे, वो इसमें आपको मिलेगा. Then coming to the Abhidham Pitak, consist of Buddhist philosophies. Buddhist philosophies के बारे में यहाँ बताया गया है. जातक कथा,
लॉर्ड बुद्धा के जीवन से संबंधित, दैट इज दैट प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वो जातकों में वो लिखा गया है। मिलिंद पन्हो, दैट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच कंसिस्ट अबाउट द फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन ग्रीक रूलर मिनांडर एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेन, इन दोनों का जो वार्तालाप है, जो उनके बात है, वो मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। कमिंग टू द दिव्य वदान, दिव्य वदान इज अ 4th century AD information about different rulers. Coming to आर्य मंजूश्री कल्प, तो ये मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर फ्रॉम बुद्धिस्ट परस्पेक्टिव। अंगुतर निकाय गिव्स द नेम ऑफ 16 महाजनपदास। कमिंग टू द सिंहलीज टेक्स्ट, सिंहलीज मतलब श्रीलंका जो है, तो पहले के नाम में सिंहली कहते थे। श्रीलंका के जो टेक्स्ट है वहाँ पे आपको पता है बुद्धिज्म स्प्रेड किया हुआ था, तो जो स्प्रेड किया हुआ था वो लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ दीप वंश एंड महावंश, जो दिस टेक्स्ट है। एंड देन दीप वंश इज इन द 4th century AD. Coming to that, Mahavans in the 5th century and provided the information about the social culture life of that time. That knowledge of culture relation India and foreign countries, जो इंडिया के साथ रिलेशन था उसके बारे में इसमें दिया गया। Coming next is the Jain text. Jain text के बारे में देखते हैं। अगम टेक्स्ट, इट इज 12 नंबर में 12 अगम है। आचरांग सूत्र पार्ट ऑफ अगम बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड टॉक अबाउट द कंडक्ट ऑफ जैन सेंट, जो जैन संत थे के जो रहने का तरीका था जैन, उनके बारे में इसमें मेंशन किया गया, दैट इज कॉल्ड टू बी, वो अगम कहा जाता था। भगवती सूत्र अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द 16 महाजनपद। भद्रबाहु चरित्र थ्रो लाइट ऑन द जैन आचार्य भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त। परिशिष्ट परवन, परिशिष्ट परवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट रिटन बाय हेमचंद इन 12th century। ये टेक्स्ट है जैन के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई। कमिंग टू द नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि, और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। एक तरफ टेक्स्ट का नाम होगा और समटाइम्स दैट राइटर्स ऑफ दैट टेक्स्ट ऑल्सो, तो आपको मैच द फॉलोइंग आपको देखना पड़ेगा। देन अगेन अष्टाध्यायी बाय पाणिनि, ओल्ड ग्रामर लिटरेचर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ प्री मॉडर्न पीरियड। मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त, इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड। अर्थशास्त्र कौटिल्य अभी जानते हैं, दैट 15 पार्ट्स में ये लिखा गया है, और द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कंडीशन ऑफ मौर्यन एज। महाभाष्य ऑफ पातंजलि दैट एंड मालविका अग्निमित्र by Kalidas, information about the Sunga dynasty. Kam Sutra by Vatsyayan, information of social, physical relation, family, etc. Mirch Katikam by Sudrak and Dash Mukh Charitra by Dandin, information about the social life of that particular period. ये जो है ऑथर है जो नॉन रिलीजियस सेक्ट से टेक्स्ट है। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर फ्रॉम द संगम, एंड इफ can expect this question from that संगम period in the coming years। अभी जो क्वेश्चन का भी ट्रेंड देखेंगे इस साल भी और पीछे साल भी, साउथ इंडियन हिस्ट्री से जा रहा है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर, इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द लिविंग ऑफ द तमिलनाडु। अगत्यम रिटन बाय अगस्त्य, वर्क ऑन ग्रामर ऑफ लेटर्स। तोल्कापियम, इट्स तमिल ग्रामर written by Tolkappiyar, a treatise on grammar and poetry. Tuttugai is 8 anthologies written by Melkanaddu, फाइन फॉर्म में लिखा गया। पत्तू पाटू, ये भी मेलकानाडू द्वारा कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया। पेटिन कलिकानाडू रक्कू, अ डेडिकेटेड वर्क। कुरल, ये तिरुवल के रूप में लिखा गया है, अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटी, इथिक्स एंड नॉर्म्स। शिल्पादिकरम, इलांगो आदिगल, अ लव स्टोरी ऑफ कोवलम एंड समाधवी, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। माधवी, एंड देन मनी मेक्कलई, इस सितलई सतनार, द एडवेंचर ऑफ मनी मेक्कलई, इसके बारे में बताया गया है। शिवांग सिंदामणि को भी लिखा गया तिरुपत देवर के द्वारा, ये संस्कृत ट्रीटीज है, ये संगम लिटरेचर है। भरतम देवनार, द लास्ट लिपिक। Now coming to the foreign text, this consists of Greek, Roman, Chinese, Arab traveler. First is Herodotus. Herodotus कौन थे? First historian of the world, mentioned Indian soldiers fighting along the side of Persia.
Coming to the Megasthenes. Megasthenes कौन थे? That ambassador of Seleucus Nicator and posted in the court of Chandragupta Maurya. Work on Indica. Indica gives the description layout of the Patliputra, which is the oldest, you can say, city of that Indian history. Mention about the social structure, caste system, caste relation. Original Indica is already lost. वो अभी हमारे पास नहीं. Coming to the periplus of Erythraean Sea. Now this year the question has asked in your question paper. आपने देखा होगा मुजरिस एक वर्ड आया था ना, वो टर्म कहाँ से है? जब आप रोमिला थापड़ की एक किताब आती है इंडिया समथिंग में पढ़ेंगे, तो कुछ पोर्ट के नाम इंडिया में दिए हुए हैं. हाउ दैट वी हैव अ ट्रेड विद इंडिया एंड अदर सिविलाइजेशन. वहां पे इंडिया के साइड से जो पोर्ट थे उसमें मुजरिस एक पोर्ट था. उस पोर्ट के नाम से ही अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपका वो क्वेश्चन. अदर जो क्वेश्चंस थे जो उसमें नाम दिए थे वो शायद को पता नहीं था, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस से आप देख सकते थे, वो कर सकते थे. बट एलिमिनेशन प्रोसेस तो अभी भी कर भी नहीं सकते थे आप, चूंकि इस साल से वो आ गए कौन से पेयर 2 सही है 3 से, ये आप यहाँ से देख सकते. बाय रिटन बाय अ फिशरमैन, गिव कोस्ट, गिव impartial and objective information about the Indo-Roman trade during that early historic period. Information about the poets on that India to coastline trade center area, trade routes connecting trade center and port, and distance between centers, item of trade, annual volume trade, types of जितनी कहानी है सब periplus of Erythraean में दिया गया है. Coming to the travelers, which is Payan, जिन्होंने गुप्ता पीरियड में विजिट किए थे. उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड इंडिया टू सी द नॉलेज ऑफ देवभूमि एंड विजिट दिस पिलग्रिमेज सेंटर किया. स्टडीड बुद्धिज्म, रीड ओरिजिनल बुद्धिस्ट वर्क, कलेक्टेड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एंड मेमेंटोज एंड मेड कॉपीज, अटेंडेड हर सेशन. ये सारी चीजें फाइयान के बारे में है. एंड लास्ट इज वेंसान, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रेन, विजिटेड बुद्धिस्ट centers, stayed in Nalanda University, Bihar in Nalanda district. Other is in Taxila and one is. These are the universities. So these are the things which is that related to the history of that courses. So today we can end here. These are the first chapter we have completed. Before that we have given the broader picture how history has been written, what is the timeline, that the kind of, you can see that entire scenario of the question paper, how they will ask. I am giving you the book list also. Depending upon, to try to, just one advice from me, whatever you have a source, either my notes or somebody else, or if you have anything like you have already done your examination preparing for the last 2 years, try to stick yourself with one book or one note. That is the key factor. Because if you spread that number of notes and you don't have to revise the thing, you cannot accumulate the knowledge in your mind. But if you read that once for one time, one note for several times, that will consolidate. And that is the key for your history geography. At least you can go to that conclusion to eliminate or maybe to your swap kar sakte. Okay? Tomorrow we'll start with that proto-history, that all the parts of the like all, and after that you can finish it that ancient then. Any doubt till now? Particular about the entire GS you are asking, or maybe particular about the GS? देखिए एक जो सबसे important चीज मैं आपको बता दूं, the sources which is read by many serious students. Means suppose that every year 10 to 12 lakh students have filled up the form. Roughly half of them have appeared in the prelims. Half of them, only 80 to 90,000, they are a serious who have taken the classes, have studied their own, or maybe give that timing. समय दे रहे हैं वो अपने तैयारी में. Competition वहीं. And moreover, the sources which has read by every student is the common one. अगर उसमें से अगर आप मिस करते हो और गलत करके आते हो, you are out of the race. But one question which is very difficult and cannot be easily available by that every student, फिर भी आप रेस में बने. It means what I try to say that, know that everybody says that
एम लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल फॉर एम लक्ष्मीकांत की बुक है, और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, मतलब आप समझो कि आप सुसाइड किए हो, आप बाहर हो उसमें। लेकिन एम लक्ष्मीकांत, बिकॉज इट्स अ कॉमन सोर्स मटेरियल विच हैज रेड बाय एवरी, लाइक स्पेक्ट्रम की बात हम करें, लाइक नितिन सिंघानिया की बात करें, तो ये जो लाइक शंकर आईएएस की बात करें, एनवायरमेंट वाले बुकलेट है, इन सब बुक्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन चीज निकल के आता है, ये सारे सीरियस स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आपको जो मैटर देता है के अलावा भी आपको ये मटेरियल सब लोग पढ़ता है। तो ये जो चीज है उसके ऊपर अगर आपने वहां से गलती करी, एक जो सबके दिमाग में फिनोमेना बना दैट आई, अब ठीक है, लाइक करंट अफेयर्स इट इज फ्रॉम विजन, विजन का पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स हो जाएगा। विजन, तो विजन का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, बट जरूरी नहीं कि अगर विजन के बाहर से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको, लेकिन सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट है कि विजन का अगर कर ले तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिमाग में रहेगा, अगर वो कोई स्टूडेंट किया है और अगर हम नहीं कर रहे हैं शायद आप बाहर, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के पास वो मटेरियल अवेलेबल, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लाइक हिस्ट्री में अगर बात करें तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर जो हम पढ़ा रहे क्वेश्चन मैं डायरेक्टली खुल के बोलता हूं कि मेरे नोट से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। फिर आप पूछोगे पढ़ाने का क्या मतलब है, पढ़ाने का यह मतलब है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ क्लोज यू हैव टू आइडेंटिफाई आंसर द ऑप्शन विच यू हैव अवेलेबल। लेकिन उसमें भी एक आइडिया, बिकॉज वंस यू आर गिविंग टू द प्रीलिम्स और मेंस, और इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स और मेंस जब आप एग्जाम देने जाते हो आपको लगेगा सब बेकार है, बेकार पढ़ा हमने, कहाँ से क्वेश्चन आया पता ही नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें भी 35 to 40 क्वेश्चन आपको मिले जो आपके जो पढ़ाए गए हैं या आपका जो सोर्स मटेरियल है वहां से। अगर उसको आप कहीं ना कहीं रूल्ड आउट करते हो, कहीं ना कहीं नहीं देखते हो, तो आप सीरियस, आप उसमें गलती करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो वो मटेरियल आपको आइडेंटिफाई करना, इसलिए मैंने आपको हिस्ट्री के वो मटेरियल बताए तो सीरियस लोग करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि नई एनसीईआरटी को, ये आपके ऊपर ऐड ऑन आपको करना है कर लो। अब इसमें है कि कुछ चीजें उस वाले में मिलेंगी, कुछ इसमें मिलेंगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं एक चीज एक जगह करके आपको सब कुछ दे दूं, और आपका एक प्रयास रहना चाहिए कि जो मटेरियल आप पढ़ते हैं, जैसे पहले से आपको किसी पढ़ते आ रहा है, आप उसी को फोकस करिए, और फोकस करने के बाद उसी को कंसोलिडेट कर लीजिए। आपका जो प्रश्न यहाँ पे ये था उसी को करने का, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, किसको कितना याद रखें। अब मतलब इट्स लाइक समथिंग कि इसको ऑप्शनल की दृष्टि से ना देखें। हमने वहाँ यहाँ पे उतना ही बातें आपको बताया है, तो आपके हिस्ट्री, सिर्फ हिस्टोग्राफी को तो आपको मतलब जरूरत नहीं थी। फिर भी री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, अगर क्वेश्चन, अब मैंने इस बात को यहाँ पे ऐड करा। बाकी जो भी चीजें आपको मिलेगी वो एकदम लिमिटेड वे में मिलेगा, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, और रख भी नहीं पाएंगे। कहने के लिए मैं बोल दूं, अगर आप अभी हड़प्पा के साइट पे आएंगे, लॉट्स ऑफ फाइंडिंग्स, लॉट्स ऑफ साइट्स, अब उसमें से कोई पूछ दे एक चीज यहाँ कहाँ मिला है, आप कितनी बातों को समझ, वो आपके ऊपर है कि कहीं आपके नोट्स में अगर दिख गया। और ये यूपीएससी एग्जाम जहाँ पे आप समझो कोई भी मैटर आपके नजरों से गुजरा है तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो आप तुक्केबाजी करो, गेस वर्क ही करोगे। मैथ्स वैथ्स में क्या होता है बेसिकली कि आप प्रैक्टिस करते हो, उसके पे आप आंसर करके निकाल लेते हो, कंक्लूड नहीं लेते। इस तरीके से ये पार्ट को आप उसी हिसाब से करिए। आगे कल क्लास में एनी डाउट और किसी को?